नहीं रही आवाज, क्या नहीं रही, बाहर में दरवाजा बंद है क्या? Assalamu alaikum viewers. Today's topic is uh, using the scientific method, and under this topic we have read point first point, better control of diseases. I have told you how to control diseases in the past time, what was the condition, prevailing condition, and what is today's condition about diseases. I have read all this. And second topic, under the topic using the scientific method, written by Bernard, Darrell Bernard, and Lon Edward. Second point under this topic is better, या subtopic कह लें under this main topic is better sanitary conditions, यानी better conditions related to cleanliness, सफाई से related या सेहत आमा से related बेहतरीन सूरत हाल या better hygienic conditions कैसी थी पास्ट में. हाइजेनिक कंडीशन यानी सेहत से मुतल्लिका, ठीक है, सेहत से मुतल्लिका सूरत हाल क्या थी. व्हाट काइंड ऑफ unpolluted or polluted conditions were prevailing, sanitary unpolluted. What kind of uncontaminated conditions were prevailing in the past. better sanitary conditions past का भी आपको बताएंगे, और what kind of conditions regarding cleanliness is prevailing nowadays. What is the situation nowadays and what is the situation before science in the past are discussed under this topic. First one is it is so now it is better to start between the lines. It is difficult to imagine, कहते हैं ये इमेजिन करना बिल्कुल मुश्किल है. What sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. It is difficult to imagine. It is unimaginable to think. कहते हैं ये सोचना जो है it is unimaginable है, या कह लें कि it is difficult to think. ये सोचना भी मुश्किल है कि what kind of sanitary यानी कि what kind of hygienic conditions, what kind of uncontaminated conditions were prevailing in the big cities just 200 years ago. कि 100 year ago, कि एक सदी पहले किस किस्म की sanitary conditions were prevailing in the big cities. Villages जो हैं, they were very polluted. Villages were very backward. But as for larger cities were concerned, they were also not good regarding hygienic conditions, regarding conditions prevailing, regarding conditions of cleanliness. Cleanliness related situations जो थी, it was not very good even in the larger cities. गांव तो कहीं पीछे रह गए, शहरों में भी हालात साइंस से पहले बहुत खराब थे. Into the narrow, unpaved and poorly drained streets. Streets were narrow. Narrow मतलब तंग थी, very close, बहुत तंग, unpaved, uneven, not well constructed. जो roads हैं वो constructed नहीं थी, गलियां तंग थी. Streets were narrow and uneven, not fully constructed, and poorly drained, and there was no proper drainage system in the streets. और गलियों में कोई proper drainage system यानी sewerage system, गटरों का कोई बाकायदा निजाम गलियों में नहीं था. तो जब गटरों का कोई बाकायदा निजाम नहीं था big cities में, तो you can imagine के what kind of situation would be in the past in the villages, कि गांव में क्या सूरत हाल होगी अगर शहरों में भी proper drainage system नहीं है, यानी proper system of sewerage नहीं है. Our household people have no awareness. लोगों में कोई awareness नहीं थी कि लोग क्या करते थे, बिल्कुल illiterate थे. They threw their household यानी घर का जो garbage है, rubbish, waste,
trash, filth, घर की गंदगी and other refuse or waste material were thrown. They threw this waste material out of their houses into the street. गलियों में फेंक देते थे अपने घरों का कूड़ा करकट. और ये illiteracy ही है कि हमें इतना भी नहीं पता. हाँ, ये illiteracy है कि लोगों को इतना भी नहीं पता था. That people didn't know that diseases takes birth in trash. Diseases spread in filth, कि बीमारियां filth में फेंकते हैं. Even if the houses are clean, but streets are full of garbage, it means diseases are spreading all around us and we are not safe from these diseases. और हम इन diseases से safe नहीं है. अगर गलियों में कूड़ा है तो germs तो गलियों में है, तो हम safe नहीं है. तो ये लोग करते थे कि घरों की गंदगी बाहर गलियों में फेंक देते थे. ये illiteracy थी, जहालत थी. Animals, और कह लें कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था, यानी डर्टी वाटर जो है इट वाज स्टैंडिंग everywhere in the uneven streets, in the unpaved street. उनमें पानी भी खड़ा होता था, गंदा पानी भी, और लोग कूड़ा भी उसमें फेंकते थे. इतने बुरे हालात थे बिफोर साइंस. ये बिफोर साइंस सिचुएशन वी आर रीडिंग. कहते हैं एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स. गलियों में जानवर जो हैं they all the time animals were there in the streets. Animals गलियों में होते थे, feeding about the garbage. They ate trash, वो trash खाते थे. और कह लें कि that's why their flesh and milk was not safe and healthy for the people. लोगों के लिए safe भी नहीं होता था उनका गोश्त, और healthy भी नहीं होता था उनका milk animals का, because they fed on garbage, on trash, on filth. Outdoor toilets were common. In the past, there was no proper sewerage system. That's why toilets were not present in the houses. घरों में toilets नहीं थी क्योंकि कोई proper sewerage system नहीं था. और कोई proper sewerage system ना होने की वजह से people were bound to go out of their houses to get relieved, for relief के लिए लोग अपने घरों से बाहर जाते थे. They used fields, खेतों को यूज करते थे, open areas को यूज करते थे as toilets. और कहते हैं outdoor in the past outdoor toilets were common. और ये common practice थी in the past that people used fields and open areas as toilets because there were no proper sewage system in the houses. Many of them situated, और कहते हैं बहुत सी toilets were situated, ऐसे उन जगहों पर located on the places, उन जगहों पर वाक़या थी where human waste drained into wells, from where human waste जो है कह लें कि it was flown off, ये बह के चला जाता था into those wells, उन कुओं में चला जाता था, from where people got drinking water, जहाँ से लोग पीने का साफ पानी लेते थे. अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि साफ पानी कितना साफ होगा. साफ पानी कितना साफ होगा कि अगर पास टॉयलेट जो है वो टॉयलेट इज लोकेटेड नियर द वेल एंड होल ट्रैश एंड होल ह्यूमन वेस्ट इज फ्लोन ऑफ इनटू द वेल. तो हाउ क्लीन द वाटर ऑफ द वेल कैन बी, कितना साफ हो सकता है, यू कैन इमेजिन. तो लोग इस पानी को पीते थे. ड्रेन्ड इनटू का मतलब यही है फ्लोन ऑफ, वाइप्ड आउट, के पानी चला जाता था कुओं के अंदर और लोग वो पानी एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज करते थे. उनके नजदीक चूंकि जर्म्स और चीजें नीचे बैठ जाती थी, जर्म्स नजर नहीं आते थे, जबकि वो पानी फुल ऑफ जर्म्स होता था. तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, जर्म्स नजर नहीं आते थे, तो वो समझते थे कि जर्म्स नहीं है और उसको एज ए प्योर वाटर पी लेते थे मजे से, एज अ प्योर ड्रिंक. Today our city streets are paved. लेकिन आज साइंस के बाद की सूरत हाल क्या है जी, हम जानेंगे. ये साइंस से पहले की थी. not even of villages but also of
but not even we were talking about villages, but we talked about larger cities. uh, Larger cities were passing through such deplorable, such miserable, such pathetic condition. अब मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द कंडीशन टुडे, आज की सूरत हाल क्या है आफ्टर साइंस, व्हाट इज द condition of sanitary condition prevailing today, what type of hygienic condition prevailing today, what is the condition of cleanliness today, आजकल सफाई की क्या सूरत हाल है. Today our city streets are paved, आजकल हमारी जो roads हैं these are well constructed, पक्की सड़कें हैं and well drained हैं, and there is proper sewerage system in the streets, गलियों में बाकायदा पानी के निकास का एक सिस्टम है, जिसकी वजह से डर्टी वाटर जो है इट इज नॉट स्टैंडिंग एवरीवेयर इन द स्ट्रीट्स, डर्टी वाटर गलियों में खड़ा नहीं होता है, एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, sweepers are given the task to clean the streets regularly, and government is doing this. Government is taking steps to clean the cities and streets. Sweepers come daily to clean the streets. गलियों को साफ करने के लिए डेली स्वीपर्स आते हैं और प्रॉपर सीवरेज सिस्टम है, जिसकी वजह से अब बीमारियां उस तरह से नहीं फैलती as they were spreading in the past, because सफाई का प्रॉपर इंतजाम है. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिजीजेस कहने के germs are nurtured, germs are brought up in the उनकी नशोनुमा होती है, they are nourished in the क्या उसे कहेंगे कि इन द ट्रैश, गंदगी के अंदर जर्म्स पलते हैं. तो जब गंदगी नहीं है तो फिर जर्म्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से डिजीजेस आर नाउ कंट्रोल्ड सफाई की वजह से. और कहते हैं इट इज अगेंस्ट द लॉ, और ये अनलॉफुल एक्ट होता था टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, गलियों में गार्बेज, फिल्थ को गलियों में फेंकना, ह्यूमन फिल्थ, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन रबिश मटेरियल, घरों की गंदगी को या household garbage people threw in the past out of their houses in the street, and now it is an unlawful act. अब इसको एक unlawful act समझा जाता है जो कि कानून के खिलाफ है, and it is a crime, एक गुनाह है, इसकी बाकायदा सजा है अगर आप पकड़े जाते हैं. सीवेज होता है जी dirty water from all over the sections, all over the parts of the cities. शहर के तमाम हिस्सों से जो dirty water है it is carried through nowadays, it is carried through, it is transferred, इसको transfer कर दिया जाता है through sealed pipelines बाकायदा pipelines are spread to dispose of dirty water into the disposal plants. Disposal plants के अंदर dirty water को wiped out करने के लिए wipe out और dispose of करने के लिए या पानी गंदे को ट्रांसफर करने के लिए, कैरी थ्रू मतलब ट्रांसफर करने के लिए डर्टी वाटर को डिस्पोजल प्लांट्स बना गए हैं बाकायदा, कहने के फॉर ऑफ फ्रॉम द सिटीज, शहरों से दूर बनाए गए हैं. और डर्टी वाटर जो है इट इज डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू सील्ड पाइपलाइंस, ताकि जरासीम बाहर ना आ सके. पाइपलाइन सील्ड है और उनके थ्रू डिस्पोजल प्लांट्स में चला जाता है, जिसकी वजह से गलियां और शहर बीमारियों से महफूज रहते हैं और जर्म से पाक रहते हैं. through the use of scientific method के इस्तेमाल से it has been demonstrated, हमें ये भी पता चला है, it is shown to us, ये हमें इस बात का पता चला that unsanitary यानी unclean conditions cause the spread of diseases. जैसा कि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अगर सफाई होगी तो जर्म्स नहीं पैदा होंगे, क्योंकि जर्म्स जो हैं they spread in unclean conditions. तो अब हमें ये अवेयरनेस आ गई है, साइंटिफिक मेथड ने हमें ये अवेयरनेस दी है कि जर्म्स टेक्स बर्थ इन फिल्थ इन अनहाइजेनिक कंडीशंस, दे आर नरिश्ड, जर्म्स जो हैं उसमें पलते हैं. तो हमें ये साइंस है कह लें कि शोन टू अस, हमें ये बता चुकी है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस कॉज स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. यही अनक्लीन सिचुएशन, गंदगी ही बीमारियों के फैलने की वजह बनती है, क्योंकि जर्म्स गंदगी में पलते हैं. जैसे कि ज्यादातर गंदगी में कौन सी कॉमन डिजीजेस हैं, कह लें कि विद विच पीपल आर विक्टिमाइज्ड, यानी ऑफ विच पीपल आर विक्टिमाइज्ड, या जिनका लोग शिकार होते हैं, जिन बीमारियों का लोग शिकार होते हैं. विच आर द कॉमन, व्हाट आर दोज कॉमन डिजीजेस लाइक टाइफॉइड फीवर.
जरा सी गंदगी हो तो टाइफाइड फीवर फैल जाता है, कॉलरा, हैजा। गंदा पानी पीने से, अगर हम थोड़ा सा भी गंदा पानी पीते हैं, डर्टी वाटर, वो प्योर वाटर नहीं होता, तो कॉलरा स्प्रेड कर जाता है। डाइसेंट्री, पेचिश, लूज मोशन, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन डिजीजेज हैं जो कि गंदगी की वजह से फैलती हैं। नॉर्मली लोग इन्हीं बीमारियों का शिकार होते हैं अनक्लीन सिचुएशंस की वजह से, क्योंकि पानी गंदा होता है और पानी गंदा पीते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसलिए अगर हर चीज साफ होगी तो डेफिनेटली हमारे घर का पानी भी साफ ही होगा। तो टाइफाइड फीवर, कॉलरा एंड डाइसेंट्री आर द कॉमन डिजीजेस स्प्रेड बाय अनक्लीन सिचुएशन। ये आमतौर पे ज्यादातर फैलती हैं। टुडे मोस्ट सिटीज गवर्नमेंट हैव डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन। अब तो ये है कि बहुत साइंस तरक्की कर गई है, बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी बन चुके हैं शहरों के। बल्दिया के डिपार्टमेंट जो कि सफाई का इंतजाम करते हैं। सैनिटेशन मतलब डिपार्टमेंट ऑफ क्लैनलीनेस, सफाई के डिपार्टमेंट बन चुके हैं, विच कीप द सिटीज क्लीन। जिस तरह के जहाँ से डेली हमारे गलियों में स्वीपर्स आते हैं और कूड़ा उठाने वाले आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट से आते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं टू क्लीन द सिटीज। तो ये लोग गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जो कि बड़े अच्छे स्टेप्स हैं, और कहते हैं कि देयर बाय, और इसीलिए प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीजेस। इसी तरह इट हैज बिकम, कहते हैं कि इट हैज बिकम पॉसिबल द कंट्रोल ऑफ डिजीजेस का जो कंट्रोल है, इट हैज बिकम नाउ पॉसिबल। अब ये मुमकिन हो गया। फैलती तो है लेकिन उस तरह नहीं कि जिस तरह पुराने जमाने में फैला करती थी। अब हम आते हैं जी, ये तो थी हमारी गलियों की और घरों की सिचुएशन सैनिटेशन से रिगार्डिंग, या फिर कहने के सीवरेज सिस्टम के बारे में बात की जा रही थी। लेकिन अब हम बात करेंगे पानी की कि कैसा पानी, किस तरह मतलब लोग पानी लेके आते थे दूर फॉर ऑफ एरिया से, डिस्टेंट एरिया से, और वो पानी कितना साफ होता था और उस पानी को लोग पीते थे एज अ प्योर वाटर, वो पीते थे, और वो कितना साफ होता था पानी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये कॉलरा, ये डाइसेंट्री और ये टाइफाइड फीवर ये गंदे पानी से कॉमनली स्प्रेड करते हैं। तो आप देखेंगे कि माजी में, पास्ट में, पानी भी, साइंस से पहले पानी भी कितना साफ होता था। और अब तो ये है ना कि वी गो टू द वॉशरूम एंड वी कहने के टर्न ऑन द टैप को टर्न ऑन करते हैं, या टैप को टर्न ऑन करते हैं, जिस तरह से भी। and a lot of water is available for bathing purposes and for cleaning purposes. A lot of water is available, but in past situation was totally different. Water was not easily available, आसानी से available नहीं होता था। People went कह लें कि far off areas to bring water from the wells. कुओं से पानी लाते थे फॉर ऑफ एरिया से, सो दैट वाटर जो है इट वाज यूज्ड स्पेयरिंगली, केयरफुली यूज होता था, बड़ी एहतियात से ये पानी यूज किया जाता था, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज लेस। पानी की क्वांटिटी बड़ी कम होती थी, बिकॉज पीपल ब्रॉट फ्रॉम फॉर ऑफ एरियाज द बकेट फुल वाटर। बाल्टियां भर भर के पानी लेके आते थे, और पानी की मिकदार चूंकि बड़ी कम होती थी तो एहतियात से यूज करते थे, और वो पानी भी कितना प्योर होता था। आई हैव टोल्ड यू कि टॉयलेट्स वर लोकेटेड नियर द वेल्स एंड ऑल द डर्टी कहने के वेस्ट, all the waste of human beings is drained off into those wells. तो वहां से लोग पानी लेके आते थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो पानी कितना साफ होता था, और पानी होता भी मच वाटर अवेलेबल नहीं होता था, बकेट फुल वाटर होता था, दूर दराज के इलाकों से आता था, तो लोग बड़ा स्पेयरिंगली, बड़ा केयरफुली यूज करते थे। लेकिन साइंस की तरक्की के बाद सिचुएशन इतनी चेंज हो गई है कि अब हम जाते हैं वॉशरूम में, वी टर्न ऑन द टैब को ऑन करते हैं, और साथ ही कह लें कि मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एंड वी एंजॉय वाटर अ लॉट। और हाथ धोते हैं, नहाते हैं, पाक साफ करते हैं, खुद को वजू करते हैं, जो कि कहने के बीमारियों से बचने का एक जरिया भी है कि आपके हाथ पाक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। आप हाथों को, जैसे कि कहा जा रहा है कि आजकल 20 सेकेंड्स आपने हाथों को धोना है, 20 सेकंड्स धोना है। तो प्लीज ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है 20 सेकंड्स धोना? पहले तो इतना पानी होता ही नहीं था, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज हम बीमारियों से महफूज हैं। कहते हैं आज सेंचुरी अगो, सिर्फ एक सदी पहले सिचुएशन वाज सो
सो कंटेमिनेटेड, सूरत हाल बड़ी मिजरेबल थी, बड़ी पथेटिक थी, कुछ भी कह लीजिए कि बड़ी पिटीएबल थी, बड़ी डेप्लोरेबल थी, बड़ी कंटेम्प्टेबल थी, बड़े बुरे हालात थे। पिटीएबल, पथेटिक, डेप्लोरेबल, कंटेम्प्टेबल, एक बड़ी बुरे हालात थे। एक सदी पहले कहते हैं इट वाज कॉमन प्रैक्टिस, और ये कॉमन प्रैक्टिस थी, यानी एक रूटीन थी, ये हमारी एक डेली रूटीन थी, ये चीज हमारी रूटीन का हिस्सा थी बहुत से शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल, कि बकेट फुल वाटर जो है वाज ब्रॉट, ये बकेट फुल वाटर यानी पेल फुल, बाल्टियां भर भर के पानी लाते थे फॉर डेली यूज, हाउस होल्ड यूज, डेली यूज के लिए पानी बाल्टियां भर भर के लेके आते थे। ये कॉमन प्रैक्टिस थी इन द पास्ट, बिकॉज वेल्स जो है फ्रॉम वेयर पीपल गॉट वाटर, इट वाज प्रेजेंट इन फॉर ऑफ एरियाज और एट फॉर ऑफ एरियाज। घरों के अंदर तो टॉयलेट्स भी नहीं थी, पानी का कोई बाकायदा सीवरेज का सिस्टम भी नहीं था, और कोई पाइपलाइंस भी नहीं थी, कोई मतलब पानी जो प्योर वाटर घरों को प्रोवाइड करती, तो जाहिर है बकेट फुल वाटर पीपल ब्रॉट फ्रॉम फॉर ऑफ एरियाज। water had to be carried a considerable distance, water जो है ये लाया जाता था from large distance, दूर दराज के इलाकों से लाया जाता था, from the wells to home, घरों में लाती थी औरतें बाल्टियां भर भर के दूर दराज के इलाकों में से लेके आती थी घरों में, हाउस होल्ड यूज के लिए, रूटीन यूज के लिए, और कहते हैं इट वाज देयरफॉर यूज्ड वेरी स्पेरिंगली, और चूंकि पानी जो है इट वाज अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी, सो people used water sparingly, carefully यूज करते थे फॉर बाथिंग एंड फॉर क्लीनिंग पर्पजेज। जाहिर है खुला पानी यूज नहीं कर सकते थे, और खुले पानी में जो सफाई है वो कम पानी में नहीं है, ठीक है, तो खुला पानी यूज नहीं कर पाते थे, थोड़ा पानी यूज करते थे। और फिर कहते हैं कि ऑफन ये जो वाटर है इट केम फ्रॉम सोर्सेज फ्रॉम दोज वेल्स, वही जो मैंने आपको बताया कि ऐसे सोर्सेज, ऐसे जरियों से आता था, ऐसे कुओं से आता था दैट कंटेन डिजीजेज, दैट वर कंटेमिनेटेड विद जर्म्स, पॉल्यूटेड विद जर्म्स, कि पानी वो जो नहाने का पानी और पीने का पानी उन कुओं से लाते थे विच वर कंटेमिनेटेड विद जर्म्स, जो कि फुल ऑफ जर्म्स होते थे, पॉल्यूटेड विद जर्म्स, जर्म्स से भरे हुए होते थे खुद, कि सारी गंदगी ही उन कुओं में जाती थी। तो वो कितना साफ पानी होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये बिफोर साइंस बात हो रही है कि पानी की मिकदार भी कम थी और पानी इतना प्योर नहीं था जितना प्योर हमें अब मिलता है, और ये साइंस की तरक्की की बदौलत पॉसिबल हुआ है कि सील्ड पाइपलाइंस आर स्प्रेड फ्रॉम rivers to the cities and to even villages, sealed pipelines हैं to bring pure water to homes, and कह लें कि separate sealed pipelines are also spread to throw off dirty water of the houses to the far off areas, यानी कि डर्टी वाटर और साफ पानी की पाइपलाइंस जो है ना वो सेपरेटली वो स्प्रेड की गई हैं, बिछाई गई हैं शहरों के अंदर, विलेजेस के अंदर। ये सब पॉसिबल हुआ है साइंस की तरक्की की बदौलत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आज की सूरत हाल क्या है पानी की। कहते हैं टुडे टाउन्स एंड सिटीज टुडे हैव वाटर सिस्टम, एक बाकायदा पानी का निजाम है that usually provide water enough for household use, household मतलब everyday use, daily use, हमारे routine use के लिए enough water is available in houses, because I have told you that there is a proper water system, एक बाकायदा पानी का एक सिस्टम है, यानी कि pipelines are spread to bring water to houses, to provide water to household use, to the houses, घरों को डेली यूज के लिए पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस बिछाए गए हैं। तो ये पाइपलाइंस जो है एक बाकायदा पानी का एक सिस्टम है। और कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द ग्रोथ ऑफ द सिटीज, आजकल जो है सिटीज आर एक्सपेंडिंग डे बाय डे, क्योंकि सिटीज आर गेटिंग मॉडर्नाइज्ड, सिटीज जो हैं वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू विलेजेस, दैट्स व्हाई सिटीज आर अट्रैक्टिंग द पीपल, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीपल आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज, वो लोग जो हैं चूंकि सिटीज में फैसिलिटीज हैं कई तरह की, एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं और अदर जॉब से रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, दैट्स व्हाई सिटीज आर
अट्रैक्टेड द पीपल, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं शहर जो है। और लोगों की माइग्रेशन की वजह से शहरों का जो साइज है, जाहिर है लोग वहीं जाते हैं जहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो शहरों में, बिग सिटीज में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट्स व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग टू द सिटीज। सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं टू गेट मॉडर्नाइज्ड, मॉडर्न होने के लिए, ठीक है। और मॉडर्निटी हर किसी को अट्रैक्ट करती है, और अब शहरों का साइज बड़ा हो रहा है। तो शहरों की जो बढ़ती हुई साइज अगर बड़ा हो रहा है तो शहरों का, यानी कि बड़ा होने की वजह से पानी की नीड जो है, लग्जरी भी नहीं, पानी की नीड जो है, इट इज आल्सो इंक्रीजिंग, पानी की जरूरत भी बढ़ रही है। सो सफिशिएंट वाटर इज नीडेड टू मीट, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीज। शहरों में इनफ पॉपुलेशन है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की तरफ मॉडर्न फैसिलिटीज को देखकर। शहर मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, ज्यादातर मुल्कों में शहरों ही को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा करने के लिए इनफ सफिशिएंट वाटर इज नीडेड। और ये सफिशिएंट वाटर जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको बता रहे हैं अब, कि इट इज ऑल प्रोवाइडेड बाय अ प्रॉपर वाटर सिस्टम, जो कि एक सील्ड पाइपलाइंस का एक सिस्टम है। वाटर इज प्रोवाइडेड टू द हाउस होल्ड यूज फॉर द सील्ड पाइपलाइन, यानी आप वॉशरूम में जाते हैं, टैप को ऑन करते हैं और पानी अवेलेबल होता है। ये एक बाकायदा सिस्टम है जो शहरों में प्रोवाइड किया जा रहा है। यूएसए की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक यूएसए की बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें यहाँ पर बता रहे हैं। लॉस एंजलिस इज अ बिग सिटी, इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और लॉस एंजलिस कहने थिकली पॉपुलेटेड एरिया या थिकली पॉपुलेटेड सिटी भी है अमेरिका का, थिकली पॉपुलेटेड भी है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। कहते हैं कि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, और यहाँ जो है अमेरिका ने बढ़ती हुई आबादी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की जो वाटर की जो एक नीड है, वाटर की नीड को उन्होंने कैसे फुलफिल किया है, कि दे हैव अमेरिकन जो हैं इंजीनियर्स या अमेरिकन जो हैं, उन्होंने दे हैव स्प्रेड अ लॉन्ग पाइपलाइन, उन्होंने एक लंबी पाइपलाइन बिछाई है फ्रॉम कोलोराडो रिवर, दरिया से लेके टू द लॉस एंजलिस, एक पाइपलाइन बाकायदा बिछाई है, सील्ड पाइपलाइन, टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू द पीपल, टू लॉस एंजलिस, अ थिकली पॉपुलेटेड एरिया, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। इसको पहुंचाने के लिए उन्होंने एक लॉन्ग पाइपलाइन बिछाई है, कोलोराडो रिवर से ये पाइपलाइन वो लेकर आए हैं, ठीक है। और कोलोराडो रिवर कितना दूर है लॉस एंजलिस से? 544 किलोमीटर अवे, इतना दूर है, 544 किलोमीटर अवे। एंड इट इज नॉट इजी टू स्प्रेड सच अ लॉन्ग पाइपलाइन, बट इट इज अ बिग achievement of USA that they succeeded in doing this. It is all due to scientific progress that people are able now doing miraculous things. ये करने के काबिल हुए हैं, साइंस की तरक्की है। और कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, और कहते हैं पाइपलाइंस जो है दीज आर स्प्रेड, बिछाई गई हैं, या एक्वाडक्ट बिछाए गए हैं, वाटर चैनल्स। पाइपलाइंस ऊपर होती हैं, एक्वाडक्ट थोड़ा अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड पाइप्स भी बिछाई गई हैं, एक्वाडक्ट वाटर चैनल्स बनाए गए हैं, यानी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस भी बिछाई गई हैं। और कहते हैं 1000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर वाज डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट डेली। और ये जो अकेला लॉस एंजलिस है, वहां पर कहते हैं कि कितना वाटर, हाउ मच वाटर इज प्रोवाइडेड टू ओनली वन मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ अमेरिका, कितना पानी अवेलेबल प्रोवाइड किया जाता है? 1000 मिलियन लीटर वाटर is delivered, is provided to the लॉस एंजलिस डेली, यानी डेली यूज में कितना वाटर आता है? 1000 मिलियन लीटर वाटर। पहले तो सिर्फ बकेटफुल वाटर अवेलेबल होता था ना, लेकिन अब 1000 मिलियन लीटर वाटर इज अवेलेबल while sitting in houses, घरों में बैठ के इतना पानी अवेलेबल होता है। तो ये एक बाकायदा एक एक्वाडक्ट सिस्टम है, वाटर चैनल्स हैं, पानी के रास्ते हैं जो अंडरग्राउंड भी हैं, पानी अंडरग्राउंड भी हैं, बाहर भी बिछाए गए हैं, रोड्स पर भी, लेकिन ये सब सील्ड हैं। एक्वाडक्ट सिस्टम होता अंडरग्राउंड ही है। तो बाकायदा वाटर चैनल्स हैं जो कि बिछाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट को डेली पानी देने के लिए। और ये एक्वाडक्ट होता है, वाटर चैनल्स या एक पाइपलाइंस का जो बाकायदा सिस्टम होता है। तो ये अंडरग्राउंड
होता है एक्वाडक्ट सिस्टम, या कह लें कि पाइपलाइंस का एक बाकायदा सिस्टम है। और ये कहते हैं यही नहीं कि क्लीन वाटर इज प्रोवाइडेड थ्रू पाइपलाइंस टू द हाउसेस, बल्कि डर्टी वाटर इज आल्सो थ्रोन ऑफ फ्रॉम द हाउसेस थ्रू सील्ड पाइपलाइंस टू डिस्पोजल प्लांट्स, यानी कि सेपरेटली डर्टी वाटर के लिए भी और साफ क्लीन वाटर के लिए भी पाइपलाइंस बिछाए गए हैं। It has all done. It has all become possible due to scientific progress. और कहते हैं this is a noteworthy, remarkable advancement, remarkable achievement, remarkable progress है ये ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की ये एक रिमार्केबल प्रोग्रेस है। कौन सी प्रोग्रेस? बकेटफुल सिस्टम से टू द पाइपलाइन सिस्टम, कि अब साइंस की तरक्की के बाद पाइपलाइन के थ्रू पानी घरों को जाता है। पहले लोग बाल्टियों में पानी लाते थे, और ये जो प्रोग्रेस है ना फ्रॉम बकेटफुल सिस्टम टू द पाइपलाइन सिस्टम, इट इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ मैन ऑफ साइंस, टुडेज मैन, आज के इंसान की। तो चलें जी, आज का टॉपिक जो है ये मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। ये आज जो हमने पढ़ा है वो बेटर सैनिटरी कंडीशन है, जिसमें आपको पता चला है कि गलियों की सूरत हाल क्या थी, लोगों को कितनी अवेयरनेस थी, लोग घरों का गंदगी कूड़ा बाहर फेंकते थे, उन्हें इतना आइडिया ही नहीं था कि डिजीजेज जो हैं, जर्म्स जो, अगर घरों का कूड़ा बाहर है तो जर्म्स, वी आर सराउंडेड बाय जर्म्स, इतनी अकल ही नहीं थी। तो ये सारी हमें जो अकल दी है ये हमें साइंस ने दी है कि हमारे आसपास भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि घर ही, बल्कि आपको अपने शहरों और मुल्कों को भी साफ रखना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा पानी की क्या कंडीशन थी, कितना प्योर वाटर पहले लोग पीते थे और कितना प्योर वाटर हम अब पीते हैं। अब तो हम फिल्टर्ड वाटर पीते हैं, अब तो हम बॉइल्ड वाटर पीते हैं। तो ये सब सारा कुछ ये अवेयरनेस साइंस ही ने दी है कि आज हम इतने तरक्की याफ्ता हैं और इतने लिटरेट हो चुके हैं, और बीमारियां इतनी कंट्रोल्ड हो चुकी हैं कि आज ये जो बीमारी आजकल जो फैली हुई है वो भी इंशाल्लाह ताला कंट्रोल्ड ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे फिक्र की बात नहीं है, ठीक है। तो बस आपने यही एहतियातें करनी है जो कि मैंने आपको बताई कि डर्टी वाटर नहीं पीना, अपने हाथों को धोना है, अपने आप को साफ रखना है, अपने आप को फ्रेश रखना है, फ्रेश एयर में एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, और यूँ फिट रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है तो कोई बीमारी भी आप पर अटैक नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इन सब के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक डियर्स, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मुझसे कुछ आज सीखा है तो प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।